हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं। Amen. Thank you Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you Father. We worship your name. We worship your name Jesus. Just lift up your hands and speak in tongues if you can. यदि आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो अन्य भाषा में बोलिए कुछ समय के लिए। रीबा हो सोरो बिंदलरा नेंगे इंदीलाराबा ओ सिखरा खांदलले दे ना बाशांदन ने बेसिरांदलराबा न खोलो रोबोनो बोशोंदो Isarakandalay dindana be sirakandala kolo robono bo shondo risandene be shandalalay sikarandala rabana kolo robo bobo oh ribana bo sorobondo robono bo sheila rendina be serendala rabana hila raba rendana bo sorokondo robono bo shondo robi gande naba serendela rabana. Thank you for provisions, O God. Ribanabo, Sorokobondo, Robono, Bindalarabana, Baba, Sika. Oh, Ribanabo, Sorombondo, Nobo. Help, help, oh Lord. Ribanabo, Shondo. सहायता कहीं और से नहीं आएगी. It will come from the Lord for your life. यह परमेश्वर की ओर से आएगी. इसलिए इधर उधर मत ताक, क्योंकि तेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी. Stop looking at others, looking up to others. दूसरों की तरफ और मनुष्यों की तरफ देखना बंद कर. और तेरी सहायता परमेश्वर की ओर से लौटेगी. वो वहीं से आएगी. उस पर निर्भर हो, उस पर निर्भर हो. यह सहायता तेरी ओर से भी नहीं आएगी. तू अपनी ओर ताकना भी बंद कर, पर तू प्रभु की ओर ताकना शुरू कर. The help doesn't come from anywhere else, but it comes from the Lord. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. तेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी. तेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी. तेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you. The provisions, the help means आपका प्रबंध, जिसकी आपको जरूरत है, वह प्रभु की ओर से आएगी आपके लिए. That will come from the Lord, not from anywhere else. It will come from the Lord. That help will come, and it will come from the Lord. Stop looking here and there. Start looking unto the Lord. He is your help. He is your provision. And that provision is coming from Him. Coming from Him. I said coming from Him. Read on. Keep looking unto Him. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Rabbi said, there's something more from the Holy Spirit. Just keep in prayer. Keep in prayer. Ribaho soroko mondo lorobo shondo norobo. कुछ और भी है प्रभु की ओर से. अन्य भाषा में बोलते रहे. रिबा बासारी गांदा ने बाना गिंदा ए दिया अंदा लराबाना गेंदा नबाना बो सorondo lorobo no bo shondo. Put your trust in the Lord with all of your heart. अपना पूरा भरोसा अपने पूरे दिल से उस पे डाल दीजिए. उस पे करिए, उस पे निर्भर होइए, उस पे निर्भर. Some of you try to put trust on God. आप में से कुछ लोग कोशिश करते हैं प्रभु पे भरोसा करने के लिए, लेकिन वह आपका भरोसा इमोशनल पर रहता है, आपकी भावनाओं पर निर्भर रहता है. जब आपको ठीक लगता है आप उस पे भरोसा करते हैं, जब आपको हालात सही लगते हैं आप अपने मन से उस पे भरोसा करते हैं. But that's not he's talking about. वह इसके विषय में बात नहीं कर रहा. वह आपके दिल से जब आपको सही दिखाई नहीं देता उस समय उस पे भरोसा करने की बात करता है. Trust in Him. Trust in Him with all of your heart. बाइबल में लिखा पूरे दिल से उस पे भरोसा कर. पूरे दिल से. Not a little bitty. थोड़ा बहुत नहीं. पूरे दिल से उस पे भरोसा कीजिए. रिबाहा सोरोखो. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Thank you. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you for doing it. Oh, you need to change. Some of you need to change your focus. Oh, hallelujah. 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 आपको अपने ध्यान को बदलना होगा. अपना ध्यान प्रभु पे लगाना होगा. उसके वचन पर, उसके वचन पर, उसके वचन पर, उसके वचन पर, उसके वचन पर. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, Lord. Blessed be, blessed be, blessed be the name of the Lord. Oh, तेरी सहायता प्रभु की ओर से. This word comes so strong in my heart. ये शब्द मेरे हृदय में बहुत दृढ़ता से प्रभु की ओर से आ रहा है. And you need it. I know it. आपकी सहायता प्रभु की ओर से आएगी. आपकी सहायता प्रभु की ओर से आएगी. मैंने कहा आपकी सहायता प्रभु की ओर से आएगी. Your help will come from the Lord. If you stop looking unto Him, यदि आप उसकी ओर देखना बंद कर दें और दूसरों की ओर देखना शुरू कर देंगे तो आप खुद उस सहायता के लिए बाधा बन जाएंगे. Stop looking in the right and the left. दाहिने बाएं देखना बंद कीजिए. उसकी ओर देखिए. वह आपकी सहायता है. वह आपका प्रबंध है. जैसे अब्राहम ने आइजक से कहा, जब उसने कहा कि पिताजी वेदी की भेंट के लिए हमारे पास वेदी के लिए लकड़ी है, आग है, लेकिन मेमना कहाँ है? उसने कहा यहोवा आप ही, यहोवा आप ही, यहोवा आप ही उस मेमने का प्रबंध करेगा. Come on. आप ही. You need a lamb? He will provide. Whew, man, this is, oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. 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 He provided the Lamb of God for us today. उसने परमेश्वर के मेमने का प्रबंध किया है और आपके जरूरतों के लिए भी वह मेमने का प्रबंध करेगा. जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा वह और तुमसे क्या छुपा सकता है? Thank you, Jesus. Thank you. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, Holy Spirit, it's so strong in my heart, those things. ये मेरे हृदय में बहुत मजबूती से है, दृढ़ता से है. And I look like you need this message. And I'm going to change it. Amen. And I'm going to change my message. I'll do whatever the Lord wants me to do. Amen. Okay, go to Genesis, please. Hallelujah. Thank you, Jesus. Say, Lord, thank you. Oh, you speak to my heart. Say, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे हृदय से बोल रहा है. बोलिए, मेरे हृदय से बोल रहा है, मुझसे बात कर रहा है. तेरा धन्यवाद. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I said, oh, प्रभु की स्तुति हो. You know, sometimes there is a river of flowing inside of you.
कि नदी बहती है वचन की आपके अंदर, वह बहता रहता है। हालेलुया, थैंक गॉड फॉर द होली स्पिरिट। ही dwells in us, amen। उसने कहा अब आपके अंदर रहता है। यीशु ने कहा वह सब बातें तुम्हें बताएगा। थैंक गॉड फॉर द नोइंग ऑफ गॉड, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु की ओर से जानकारी होना, आमेन। ये वो साधारण ज्ञान नहीं है जो हम एक दूसरे से पता लगता है, पर वह स्पिरिचुअल है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो ऊपर ही से आता है। आमेन। ओके, जेनेसिस चैप्टर 22, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय निकाल लिया आपने? ओके। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। Now this is something, यह कुछ ऐसा है जो अब्राहम अपनी, जिसका इनिशिएटिव वो नहीं लेता है, जिसकी शुरुआत वो नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर उसे करने के लिए कहता है। यह बात अब्राहम के दिमाग में भी नहीं थी, उसने कभी मन में विचारा भी नहीं होगा कि जिस पुत्र के लिए मैंने 25 साल विश्वास किया, जिस बेटे के लिए परमेश्वर ने मुझसे 25 और इस समय 37 साल पहले प्रतिज्ञा की थी, उसी को वह मुझे एक दिन बलिदान करने के लिए बोलेगा। Never thought about it। उसने कभी नहीं सोचा होगा, उसके अंदर कभी जानकारी नहीं होगी। पर आपको मालूम है, जब परमेश्वर आपको बुलाता है, वह आपको कहीं, हम कुछ लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, पर बाकी सब लोग बुलाए गए हैं। जब आप प्रभु में आए तो आप बुलाए गए हैं। आप और मैं अंधकार से निकाले गए हैं। आमीन। उसने लिखा है कि उसने हमें अंधकार के वश से निकालकर अपने प्रिय पुत्र की राज्य में बुलाया है। एक आयत और कहती है, ही हैज टेकन अस फ्रॉम द डार्कनेस, उसने हमें अंधकार से निकालकर मार्वलस लाइट, अद्भुत ज्योति में डाला है। आमीन। इसका अर्थ है कि हम सब बुलाए गए हैं। पर जब आप उसके साथ चलने लगते हैं, चाहे आप सेवकाई में हो, चाहे आप एक सामान्य विश्वासी जीवन जीते हैं, और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब रास्ते में हमें कुछ कुछ बातें करने के लिए बोलता है। अलग अलग बातें करने के लिए बोलता है। कुछ बातें जो आप रिटन वर्ड ऑफ गॉड, जिसे लोगोस कहते हैं, बाइबल, इसमें से जानते हैं, जिसे आपको विशेष सुनने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से, इसी से पढ़कर आप जान लेते हैं कि आपको यह करना है। आमीन। जैसे कि माफ करना, प्रेम में चलना, दशमांश देना, भेंट देना, चर्च जाना, संगति करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, यह आप यहां से पढ़कर जानते हैं आप, राइट। पर कुछ बातें हैं जो परमेश्वर आपको स्पेसिफिक बोलता है। अब अब्राहम को यह पहली बार परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, पर मेरे साथ थोड़ा सा 12वें अध्याय में चलिए, इसी किताब के 12वें अध्याय में। अब यह पहली मुलाकात थी जब परमेश्वर ने अब्राहम को पहली बार बुलाया। एक आयत, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और वहां पे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी की कि मैं क्या क्या करूंगा उसके लिए, मैं कौन सी आशीष दूंगा तुझे। उसने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उन्हें शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने बहुत सारांश में, बहुत संक्षेप में निपेट दिया यहां पे बहुत बड़ी योजना को। जब आप प्रभु में शुरू में आते हैं और परमेश्वर आपको कुछ बातें बोलता है, बहुत थोड़ी सी बातें ऐसे ही बोलता है।
आपको बहुत ज्यादा डिटेल मालूम नहीं होती, जानकारी मालूम नहीं होती, लेकिन वह आपसे उसकी आज्ञा मानने की अपेक्षा करता है। आमीन। और यह पहली बात थी जब उसने उसे कहा कि तू अपने देश को, अपने घर को, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में, उस जगह पर चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी उसने उसे बताया नहीं था, बस निकलने के लिए बोला। इसका मतलब है कि तुम गेट के बाहर कदम रखो। कहां जाना है मैं तुझे बाद में बताऊंगा, बट वी वॉन्ट टू नो एवरीथिंग जस्ट राइट नाउ। प्रभु अगर तूने मुझे बुलाया तो कहां बुलाया, कहां जाना है मुझे, गेट से निकल के कौन सी दिशा में मुड़ना है, राइट? इसका अर्थ क्या है मालूम? क्योंकि हम उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं लेकिन पूर्ण नहीं है। अभी उसे कुछ मालूम नहीं है। और आपको आपकी यादगारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए, मेरे पास अभी स्क्रीन नहीं है अंदर, नहीं मैं आपको बता सकता था। अब्राहम ने जो घर छोड़ा था वो कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं थी। बिल्डिंग कम से कम आधा एकड़ में थी। बिल्डिंग उस घर के। और यह जो सर्च की, और यह सर्च जो है ये जो मसीही स्कॉलर्स नहीं है, वे संसारिक जो लोग थे, उन्होंने इस बात को कहा कि यह हो सकता है, जिस घर को उन्होंने बताया कि यह घर अब्राहम का था, और उस समय भी उनके पास एयर कंडीशन था। घर के नीचे से पानी बहता था, बहुत ज्यादा कमरे थे उस घर के, और उस समय पोस्टल स्टैंप हुआ करती थी। It means he lived in a very modern city that time. और बहुत बढ़िया घर में। आपको मालूम है बहुत बार हम आरामदायक जगह छोड़ना नहीं चाहते। आपने कहा, सोचा तो होगा कि 22 से शुरू किया, 12 में वापस आ गए। आपको बताता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे हृदय में कुछ बातें डाली है, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूं। बहुत आरामदायक जगह छोड़कर उसने सारी जिंदगी तंबू में बिता दी। नंबर 2, अब्राहम गरीब आदमी नहीं था। जब वह लूत को छुड़ाने के लिए 5 राजाओं से लड़ने गया, आपको मालूम है 300 तो युद्ध में कौशल लोग थे उसके पास, ट्रेंड युद्ध लड़ने वाले लोग थे 300। इसका अर्थ हजारों लोग थे उसके पास, कम से कम 1000 वर्कर थे उसके पास, 1000 नौकर थे। कितने थे? 1000 कम से कम। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि उसकी किसी सूची नहीं है, पर 300 लोगों की तो सूची है। अगर आपके पास 300 लड़ने वाले योद्धा हैं तो काम वाले तो बहुत होंगे। आमीन। और परमेश्वर ने उसे पहली बार बोला और उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वह निकल गया। और अगर आप 22 अध्याय तक आते हैं तो आप 12 से लेकर 22 अध्याय तक कई बार देख सकते हैं कि परमेश्वर उसे अलग अलग समय पे बोला और अलग अलग बातें करने के लिए कहा। बहुत बार परमेश्वर आपको बोलता है। पंद्रह अध्याय आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इन बातों के पश्चात एक आयत, यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यहां भी परमेश्वर से कुछ दिशा निर्देश दिए। फिर 16 अध्याय, 17 अध्याय, वाचा का चिन्ह, परमेश्वर से अलग अलग समय पे अलग अलग बातें करने के लिए बोलता है। वह रास्ते में उसे बता रहा है कि उसे क्या करना है। आपको मालूम है, नंबर 1, परमेश्वर ने उसे जब कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा तो वह उसके संग रहा, उसने उसे छोड़ा नहीं। पर साथ रहने का अर्थ कतई यह नहीं है कि परमेश्वर आपको कुछ भी करने के लिए नहीं बोलेगा, आप जो मर्जी चाहे वही करो। नो, दैट्स नॉट द केस। ओ, हम तो करेंगे जी, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु आपके साथ है, लेकिन जब आपको उसने बुलाया है तो उसको सुनिए कि वह आपको रास्ते में करने के लिए क्या बोल रहा है।
There is a way. And he will tell you what to do. और हमें सुनने की जरूरत है। मैंने 1 साल पहले, बहुत साल पहले प्रभु को सुना था जी, 25 साल पहले प्रभु को सुना था। अब वहीं बैठे रहेंगे 25 साल पहले? आपका कोई नया अनुभव नहीं रहेगा उसके साथ? आज उसने आपको क्या बोला है? मैं आपको पिछले संडे वाला संदेश प्रचार नहीं करना चाहता, अगर प्रभु चाहेगा तो जरूर करूंगा, पर महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर क्या चाहता है। आमीन। मैं इस बात से डर नहीं है मुझे कि मुझे कभी अपने संदेशों को दोबारा दोहराना पड़ेगा, क्या लोग क्या सोचेंगे। आई नेवर केयर। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मुझे एक संदेश अगर 365 दिन लगातार बोलना पड़ेगा, आई विल। हो सकता है मैं 365 दिनों बाद ही बेहतर समझूं, और सुनने वाले भी 365 दिनों में जाके ही समझे। इट्स पॉसिबल। आपने देखा सुसमाचार 4 बार लिखा है, सेम बातें। क्यों? क्योंकि अगर मती में मिस कर दे तो लूका में पढ़ लेना, लूका में मिस हो गया तो मरकुस में पढ़ लेना, मरकुस में नहीं समझ आया तो लूका में आ जाएगा, लूका में नहीं है तो यूहन्ना में आ जाएगा, यूहन्ना में नहीं तो प्रेरितों का काम, रोमियो, फिर करंथियंस में आ जाएगा। पत्रियों में भी यीशु मसीह उन बातों को रिपीट करते हैं पौलुस के द्वारा। क्यों? गॉड इज सो इंटरेस्टेड इन आवर लाइव्स। परमेश्वर हमारे जीवनों में रुचि लेता है और वह लगातार बात करता है, और उसमें हमारी भलाई है। उन बातों में हमारी भलाई छिपी है। 15 अध्याय में उसने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल फिर। क्या कहा? हे अब्राहम, तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आगे देखिए आप 18 अध्याय। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। गॉड स्टार्टेड विजिटेड हिम अगेन। यहां पे भी परमेश्वर से बातें की। पर आपको मालूम है, अगर 12 अध्याय में उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी होती तो यह कभी नहीं होता। आप वहीं पे स्टक होते। जब तुम निकले नहीं, आपने पहली बात की आज्ञा नहीं मानी, तो आगे वाली कैसे बाप पे और मुझ पर भरोसा करेगा? जो थोड़ी और छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है, वह ज्यादा में कैसे हो सकता है? डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो जब वह आपको, दूसरी बात, जब वह आपको बुलाता है तो वह आपका मार्गदर्शन करता है। वह आपको बताता है कि आपको क्या करना है, आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किस दिशा में बढ़ना है और किस दिशा में नहीं बढ़ना है, कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, कौन सी वाचा बांधने से तुझ पे आशीष आएगी। उसने उसे खतना की वाचा का जिक्र किया। 14-15 अध्याय, 15 के बाद 16, 17 अध्याय, 18 अध्याय, यहां पे फिर परमेश्वर से बात करता है। 18 की 16 में परमेश्वर उसके साथ एक मित्र की तरह बात करता है। जब वह सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो वह कहता है, क्या मैं अब्राहम से यह बात छिपा रखूं जो मैं करने जा रहा हूं? परमेश्वर ने अब्राहम को मित्र कहा। मनुष्य परमेश्वर, बाइबल में दाऊद कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले? नथिंग बट योर कैरेक्टर एंड ओबीडियंस। आपका चरित्र और आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर को उस दर्जे में, आपको उस दर्जे में ले आती है जहां परमेश्वर आपको मित्र कहने से नहीं शर्माता है। आमीन। आप समझते हैं मित्र का अर्थ? जिसके साथ आप सब कुछ साझा करते हैं। हो सकता है अपने भाइयों से और बहनों से ना करें, अपने रिश्तेदारों से ना करें, लेकिन मित्र से करते हैं। मित्र कहते जो मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं उसे नाम बताऊं? यहां पे बाबा इस बात को बोलता है। इट्स अमेजिंग। पर कम बैक टू चैप्टर 22, 22 में वापस आ जाइए। अब यह 22 अध्याय में जो हुआ वह 12 से और 13, 14, 15, 16, 17, 18 से 19, 20, 21 से पहले नहीं हुआ।
वहां पे अब्राहम ने जो कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, वह करता चला गया। और अब्राहम की भी परमेश्वर ने मानी। यह भी आपको ध्यान देना होगा। मित्र मित्र की मानता है। 18 अध्याय में मैंने वो घटना पढ़ी नहीं, लेकिन 14 अगर वहां से आप पढ़ें, जब परमेश्वर से बताता है कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं, उनकी पाप की चिल्लाहट मुझ तक बढ़ी है और मैं देखने जा रहा था, अब्राहम वहां पे परमेश्वर से बात करता है। कहता क्या तू जहां पे 50 धर्मी हो तो 50 धर्मी के कारण नाश कर देगा? आपको मालूम है कि अब्राहम किसके लिए बात कर रहा था? लूत, अपने भतीजे के विषय में बात कर रहा था कि तू उसको तो कम से कम बचा। और परमेश्वर ने अब्राहम की बात मानी। उसने लूत और उसके पूरे परिवार को बचाया वहां से। God will listen to you। कई बार लोग बोलते हैं, ब्रदर प्रभु मेरी सुनता नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप प्रभु की सुनते हैं? मेरा सवाल यही है, क्या आप प्रभु की सुनते हैं? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। अगर आप नहीं सुनते तो आप परमेश्वर पर उसकी सुनने की दोष नहीं लगा सकते कि वह आपकी सुनता नहीं है। अब्राहम ने परमेश्वर की सुनी और परमेश्वर ने अब्राहम की सुनी। आमीन। आगे और आप धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। पहले दिन ही परमेश्वर अब्राहम को इसहाक को बलिदान करने के लिए नहीं बोल सकता था। उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति धीरे धीरे इतना गहरा होता चला गया कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा तो अब्राहम ने सवाल नहीं किया। डू यू अंडरस्टैंड दैट? देयर इज नो क्वेश्चन व्हाई। बट दैट लव, पर इस प्रकार का प्रेम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता एक दिन में नहीं आती है, बस धीरे धीरे बढ़ती है। और परमेश्वर ही पहले दिन ही आपको नहीं बोल देता एक बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए। आज आप बचे और कल आपको कहे कि जा तू मेरे लिए उस देश में चला जा, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। वह आपकी और मेरी परिपक्वता को जांचता है। आमीन। आगे देखिए, उसने अपने कहा कि अब्राहम से कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यह भी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने उसे क्या कहा? अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। आपको मालूम है, जिस चीज से आप प्रेम रखते हैं, जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, परमेश्वर उसे जानता है। आपकी अटैचमेंट उस चीज के साथ कितनी है, परमेश्वर उसे अच्छे से समझता है। He does। कहते जिससे तू प्रेम रखता है। और कई बार परमेश्वर आपको वही बात छोड़ने के लिए बोलेगा जिससे आपको सबसे ज्यादा लगाव है। एंड दैट्स वेरी पॉसिबल। पर वह हाईएस्ट लेवल ऑफ टेस्ट है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़े दर्जे की परीक्षा है वो। और उसके बाद अपने पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। और उसे यह भी कहा कि वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा उस पर बलिदान करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम किसी भी पहाड़ पे ले जाके बलिदान कर देना, या कहीं भी उसे जगह बताई मोरिया देश में, और वहां पे जो पहाड़ मैं तुझे बताऊंगा वहां उसे बलिदान करना। आपको मालूम है, जब परमेश्वर आपको और मुझे कुछ चीजें देने के लिए या छोड़ने के लिए बोलता है तो यह महत्वपूर्ण है कि उसे कहां दें और कहां नहीं। लोग, मैं थोड़ा सा टच करूंगा, कई बार लोग दशमांश की बात करते हैं और कहते हैं दशमांश देता हूं जी, पर जहां मेरा दिल करता वहां दे देता हूं, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च। नाउ आप आज्ञा मान रहे हैं लेकिन पूरी नहीं, और पूरी आज्ञा नहीं मानना अनाज्ञाकारिता है। परमेश्वर की योजना उसके लिए वही पहाड़ था और कोई नहीं। वो सारी जगह तो परमेश्वर की है जी,
परमेश्वर तो सब जगह मौजूद है, सब चर्च में प्रभु है, सब सेवकाई करते हैं। Yeah, that's right. पर आपके लिए सारी जगह नहीं है जहां पे उसने आपको रखा है। आमीन। जहां उसने हमें रखा है वही रहना हमें, सारी जगहें हमारी नहीं है। आपको मालूम है, यह बहुत बड़ी समस्या है आज के दौर में कि लोगों के पास एक व्यक्तिगत चर्च नहीं है और वह कहीं भी जाते हैं, किसी भी सेवकाई में, कभी भी, ओ ब्रदर चर्च तो मैं जाता हूं, कभी उधर चले जाता हूं, कभी उधर चले जाता हूं। और आपको मालूम है, ऐसा करने से आपके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है। अगर आप प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पढ़े तो वहां पे लिखा, पवित्र आत्मा ने जिन्हें अध्यक्ष ठहराया है, देयर आर पीपल, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अब मैं सोचूं कि मुझे तो सेवकाई करनी है, मैं सेवकाई करता हूं, कहीं भी चला जाऊंगा, यहां प्रचार कर लूं, वहां कर लूं, ये कर लूं, पर किसी के प्रति मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपको मालूम है, इसका लेखा भी हमें देना पड़ेगा। कभी कभी लोग सोचते नहीं है, पर इसका लेखा देना। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं यह विश्वास करता हूं जहां आपको अच्छा लगता है आप जाइए, हर चर्च मेंबर्स को। मैं कभी किसी चर्च मेंबर को कहीं जाने से रोका नहीं। यहां पे लोग हैं जो मुझे जब से मैं सेवकाई करता हूं तब से जानते हैं। मैंने ये शब्द कभी नहीं कहा। जहां आपका दिल करता है, आप अपने प्राणों के खुद जिम्मेवार हैं, मैं नहीं हूं। जब आप मेरे जहां पे मैं पासवान हूं, उस पासवानी की जगह को छोड़कर जाते हैं, तब मैं आपके प्राण का लेखेदार नहीं हूं। यू अंडरस्टैंड दैट? उस दिन मेरे हाथ आपसे धुल जाते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को अलग कर लिया है। पर जब तक आप यहां हैं, तब तक मैं आपके प्रति जिम्मेवार हूं। आपके प्राणों का लेखा मुझसे लिया जाएगा। आपको मालूम है, आपका खून मेरी गर्दन पे आएगा। यस, आपका खून मेरी गर्दन पे रहेगा। आपके लिए स्वर्ग जाना आसान हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यीशु मसीह के सामने खड़ा होना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे आपका सबका एक एक का हिसाब देना होगा। और जो मैं प्रचार करता हूं, इसका भी। कहां से कहां पहुंच गया? उसने कहा उसे, जो पहाड़ मैं तुझे बताऊंगा। आमीन। उस पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा टच किया है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि यार वहां चले जाएं, वहां चले जाएं। फिर बस जब सब जगह घूम के आते हैं तो फिर मेरे पास आते हैं कि आप हमारे लिए ये प्रार्थना करो। और मैं सच बोल रहा हूं, फिर मेरी प्रार्थना उनके लिए काम नहीं करती। बेशक मैं प्रार्थना करूं उनके लिए, और मैंने बहुत बार देखा है इस बात को, क्योंकि परमेश्वर उनके हृदय जानता है। और ब्रदर हैगन को यीशु मसीह ने एक बार बात ये बोली, उनका जो प्रेयर हीलिंग स्कूल था, जिसमें वह लोगों के लिए प्रेयर और हीलिंग के लिए प्रार्थना करते थे, तो वो अंदर जब लोग आने लगे तो लोगों को काउंसलिंग भी करने लगे, साथ साथ काउंसलिंग भी करने लगे। एक दिन प्रभु ने उसे कहा, उठकर बाहर जा और साइन बोर्ड पढ़, क्या लिखा है बाहर। मैं पढ़ा, बाहर गए और कहा कि प्रभु, प्रेयर हीलिंग स्कूल लिखा है, तो तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, काउंसलिंग। क्यों? प्रभु ने कहा, विश्वासियों को काउंसलिंग कर रहा था। उन्होंने प्रभु को उत्तर दिया, प्रभु इनके पास अच्छे पास्टर नहीं है। कहता, यह समस्या तेरी नहीं, इनकी है। इनके पास अच्छे पास्टर नहीं है तो इनकी समस्या है ये। दे शुड फाइंड अ गुड पास्टर और अ गुड चर्च। इनको ढूंढना है अच्छा पास्टर, अच्छा चर्च। यह तेरी जिम्मेवारी नहीं है, यह इन पर है। और यह बात ने मुझे नहीं मालूम किसी और के बारे में, यह बात ने मुझे बहुत दृढ़ कर दिया है। मैं किसी दूसरे के चर्च मेंबर को काउंसलिंग नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूं। अगर वो मुझे प्रार्थना के लिए बोलते हैं, मैं जरूर प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं सलाह नहीं देता। मैं उनको बोलता हूं, आप अपने चर्च में जाइए। और यह बहुत जरूरी है। आपने कभी देखा भी हो, हम कभी किसी दूसरे चर्च के सदस्यों को, लोगों को नहीं बोलते कि आप यहां आइए। अगर आप वहां पे हैं तो आप वहीं जाइए। आमीन, आमीन। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे यहां पे 10 ही लोग रहे, मैं 10 ही को प्रचार करूंगा, कोई समस्या नहीं है उसमें। बट आई विल डू व्हाट द लॉर्ड टेल्स मी टू डू। पर वही करूंगा जो प्रभु चाहता है।
आमेन, आमेन। पर यह संदेश का हिस्सा नहीं था। ओके, फिर भी 3 है। अतः अब्राहम सवेरे उठा, तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला गया जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे हमारे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, और आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? इसहाक को कैसे मालूम था कि होम बलि के लिए भेड़ भी चाहिए होती है? क्योंकि अब्राहम अभ्यास करता था इन बातों का। आपके बच्चे वही सीखते हैं जो आप करते हैं। अगर आप चर्च नहीं जाते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप प्रार्थना नहीं करते, आपके बच्चे भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको कभी देखा नहीं है बाइबल पढ़ते। उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है बाइबल पढ़ना, उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है चर्च जाना। हमें याद है मोनिका से बड़ा, लेकिन भाइयों में सबसे छोटा ब्रदर, वो चंडीगढ़ रहते थे। तो मैं सुबह उठ के बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता था। तो उनका इतना सा बेटा था, अभी तो उसकी शादी, फोटो देखी होगी उसकी शादी, शॉन है उसका नाम। उस समय वह 2-1.5 साल का था। वो अपने घर में बैठा, बेड पे बाइबल लेके बैठा और बाइबल को उल्टा पकड़ा ऐसे। उसकी मां पूछती है, क्या कर रहा? बाइबल पढ़ रहा हूं। बाइबल पढ़ रहा हूं। उसको कैसे मालूम था कि बाइबल पढ़ना है? क्योंकि उसने अपने अंकल को बाइबल पढ़ते देखा था। हमारे घर आता था, मैं घुटने के बल होता प्रार्थना करता, वो भी मेरे साथ ऐसे घुटने टेक लेता, प्रार्थना करता। उसको लोग पूछते थे, क्या बनेगा? प्रचारक। उसका सबसे बेस्ट प्रीचर कौन है? पप्पा। मालूम है आपको क्यों? मैंने उसको कभी नहीं बोला तुम प्रार्थना किया करो, बाइबल पढ़ा करो। He watched it. उसने देखा। इसहाक को कैसे मालूम था कि बलिदान के लिए भेड़ भी चाहिए? क्योंकि उसने बाप को अपने करते देखा था कि परमेश्वर के सामने खाली हाथ नहीं जाते। आमीन। यह महत्वपूर्ण है। आप जो करते हैं अपनी पीढ़ियों में वही बोते हैं। आप अपने बच्चों को पता होना चाहिए आपके कि चर्च जाना जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि बाइबल पढ़ना जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि प्रार्थना करना जरूरी है। मेरे पापा, मेरे मम्मी प्रार्थना किए बिना नहीं सोते, बाइबल पढ़े बिना नहीं सोते। वह बाइबल पढ़ते हैं। उन्हें मत बोलिए प्रार्थना किया कर, बाइबल पढ़ा कर। मैं तुम्हें रोज बोलता हूं। क्यों नहीं पढ़ता तू? क्योंकि उसने आपको कभी देखा नहीं है। उसने आपको कभी देखा नहीं है। And that is the best thing you can give to your children. एजुकेशन से बढ़कर, पैसे से बढ़कर, कपड़ों से बढ़कर, खाने से बढ़कर, आप सबसे बेहतर जो दे सकते हैं उनकी जिंदगी में बाइबल पढ़ना डालना और प्रार्थना करना डालना। क्योंकि जब वह उस मार्ग में, जिंदगी के मार्ग में चलेंगे, तो वह बाइबल और प्रार्थना उनके काम आएगी, क्योंकि उनका संबंध परमेश्वर के साथ है। जब वह मुश्किल में दौर में होंगे तो वह जानेंगे कि किसको पुकारना है। मुश्किल दौर आएंगे। आमीन। हम प्रार्थना नहीं करते मुश्किल दौरों के लिए, हम अच्छे दौर के लिए प्रार्थना करते हैं। मुश्किल दौर तो अपने आप ही आ जाते हैं। सही बात है ना? अच्छे दौर। सो वी हैव टू। आमीन। उसने कहा, बलिदान के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और यह उत्तर देना आसान नहीं था। वह यह नहीं कह सकता था कि बेटा आज तो भेड़ तू ही है।
You have to use a right words. और विश्वास के लोगों के पास, जो प्रभु को सुनते हैं, उनके पास सही उत्तर होते हैं, चाहे वह उत्तर उस समय कोई भी समझ ना बनती हो उनसे। ऐसा लगे कि यार क्या उत्तर दे रहे हो। और जो बात मैं यहां पे आपको बोलना चाहता हूं, जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली है, और वह यह है कि जब परमेश्वर आपको किसी काम को करने के लिए बुलाता है, तब वह आपका प्रबंध भी करेगा। अगर उसने आपको सेवकाई में बुलाया है और आपकी जरूरतें पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ी हैं, तब वह उन जरूरतों को पूरा करेगा। अगर उसने आपको परमेश्वर का काम या किसी काम में शामिल होने के लिए बुलाया है, कोई बड़ी भेंट देने के लिए बुलाया है, तो वह उसका प्रबंध भी करेगा। तब उसका प्रबंध करने की जिम्मेवारी उसकी है। आमीन। इसलिए आपकी सहायता वहां से आएगी, उसकी ओर देखना है। आमीन। अब्राहम ने इस हालात में भी यह कहा कि यहोवा आप ही, हालेलुया, यह है निर्भरता, यह है परमेश्वर पर पूरे हृदय से भरोसा करना। यह कहना है कि प्रभु पर मैं भरोसा करता हूं, वह आप ही प्रबंध करेगा। उसने मेरा इंतजाम किया है, उसने मुझे बुलाया है, वह मेरा प्रबंध भी करेगा। आपको मालूम है, मैंने पिछले संडे अनाउंस किया था कि यहां पे टाइल लगाना, टाइल हमने खरीद ली। ये खिड़कियां देख रहे हैं आप, अच्छी लग रही हैं, तो पेंट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। ये 6 खिड़कियां 48,000 रुपए की लगी हैं। कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा पेंट के अलावा इस सिर्फ हॉल का कुछ करना नहीं है रेनोवेशन के लिए। पैसे मेरे पास नहीं थे, बस शैतान मेरे दिमाग में विचार डालता है रोज। आज मैं सुबह भी घूम रहा था, कहां से होगा, कैसे करेगा, स्कूल भी शुरू होने वाला जुलाई में। मैंने कहा शैतान, परमेश्वर मेरा प्रबंध करेगा। आमीन। कौन प्रबंध करेगा? परमेश्वर मेरा प्रबंध करेगा। God will provide. That's my answer. और यही मेरा उत्तर होना चाहिए, यही उत्तर आपका भी होना चाहिए। क्योंकि जब वह आपको किसी काम के लिए बुलाता है, जब आपको वह अगुवाई कर रहा है कि ये करो या वो करो, वहां पे जाओ, उसके साथ चलो, ये दो या वो दो, या इतनी भेंट दो, या यहां पे हेल्प करो, तब आपकी मदद करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसने आपको करने के लिए कहा है। वह बोने वाले को बीज देगा, देगा या नहीं? बाइबल में लिखा है या नहीं? बाइबल में लिखा है वह बोने वाले को बीज देता है। अब्राहम के पास बीज नहीं था, यहां पर बेटा था और वह उसे देने के लिए तैयार था। आमीन। वह बीज भी परमेश्वर ने दिया था, लेकिन अब जो बलिदान होना था उसका प्रबंध भी वह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वह कैसे करेगा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है कि उसने कहा जो संसार और जो कुछ इसमें है वह सब मेरा है। अगर उसका है तो आपका भी है। हजारों पहाड़ और पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं, तो क्या वह एक मेमना नहीं देगा आपको? आमीन, आमीन। उसने कहा सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है। गाय 2 अध्याय उसकी 8 है। उसने कहा चांदी मेरी है और सोना भी मेरा है, क्या उसमें से नहीं देगा आपको? आगे चलिए आप। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। 100% अब्राहम की तरफ से इसहाक बलिदान हो चुका था, ना काम हो चुका था कंप्लीटली। अपनी तरफ से उसने बेटा दे दिया था और परमेश्वर इस बात को जानता है। आमीन। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। God is on time.
He is never late and never too early. Hallelujah. सुनिए, परमेश्वर ना बहुत जल्दी से आता है ना देरी से आता है, बस देर सवेर का परमेश्वर नहीं है, बिल्कुल टाइम का परमेश्वर है। वो टाइम पे आया वो। ऐसा नहीं कि बाद में जब वो बलिदान हो चुका इसहाक उसके बाद आया, बिल्कुल टाइम पे। कहिए, परमेश्वर बिल्कुल समय का परमेश्वर है, बस बिल्कुल राइट टाइम। कहिए, बिल्कुल सही समय पे मेरा प्रबंध करेगा। वह मुझे डूबने नहीं देगा, वह मुझे कर्जदार नहीं होने देगा, वह मुझे समस्या में नहीं पड़ने देगा, बिल्कुल सही समय पे निकाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहिए, सही समय, सही समय, सही समय। अब्राहम को लगता होगा सही समय। Come on, that was just last moment. Imagine that. कल्पना कीजिए आप एक मिनट के लिए, बिल्कुल सही समय। कई बार लगता है परमेश्वर अभी तक आया नहीं। आपको मालूम है, कई बार परमेश्वर 11:59 और 59 सेकंड पे ही काम करेगा। मैंने कहा 12वें घंटे के लास्ट सेकंड में। आमेन। बट बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने रहिए, बढ़ते रहिए आगे। जो आपको करने के लिए बोलता उसे करते रहिए। आमेन। वह आपकी मदद के लिए पहुंचेगा, क्योंकि सहायता वहीं से आती है। हालेलुया। आई एम एक्साइटेड। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मैंने पहली बार यहां से राइट टाइम बोला है। पवित्र आत्मा जानता है। ये भाग मैंने बाइबल में पता नहीं कितनी बार पढ़ा है। God is so amazing. Amen. उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उससे कुछ मत कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। You love me. You really love me. तू इसहाक से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। आपको मालूम है, अब्राहम को अपना बलिदान देना आसान होता है इसहाक से ज्यादा। पर परमेश्वर ने आसान चीज नहीं मांगी और वह आपसे आसान मांगेगा भी नहीं, क्योंकि वह आसान देता नहीं। वह सर्वोत्तम देता है, वह सर्वोत्तम की अपेक्षा करता है। हालेलुया। प्रभु तू तो जानते ही है मेरे पास यही है, यही तो वह मांग रहा है। एक बार मैं किसी चर्च में था, जब बहुत पहले उस चर्च में आराधना हो रही थी, और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हो, ना बैंक अकाउंट, ना एटीएम, ना डेबिट कार्ड, ना क्रेडिट कार्ड, कुछ भी नहीं था। बैंक अकाउंट भी नहीं था और तो दूर की बात। तो मेरे पास लास्ट जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो 5 रुपए थे। कितने थे? वही मेरी प्रॉपर्टी थी। और वहां से यह रोपड़ में था, रोपड़ से मुझे चंडीगढ़ जाना था उस सर्विस के बाद, और मुझे कम से कम 30 रुपए चाहिए थे किराए के लिए बस में, और मेरे पास आखिरी 5 रुपए थे। और भेंट आई तो प्रभु ने मुझे कहा यह 5 रुपए भेंट में डाल दे, 5 जो तेरे पास है। मैंने कहा प्रभु यही है। उसने कहा फिर उससे ज्यादा मैंने मांगे भी नहीं है। आमीन। उससे ज्यादा मैंने मांगे भी नहीं, और वो उससे ज्यादा मांगता भी नहीं है। जितने आपके पास है उतने ही मांगे, उससे ज्यादा नहीं। उसने इसहाक से ज्यादा कोई और बेटा नहीं मांगा, इसहाक ही मांगा। आमीन, आमीन। मैंने वो 5 रुपये ऑफरिंग में डाल दिए, और जैसे ही सर्विस खत्म हुई, चंडीगढ़ से मेरा एक दोस्त उस मीटिंग में आया और मुझे आके उसने 120 रुपये थमा दिए। आज शायद वो किसी के लिए कुछ नहीं है, पर उस समय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। जिसकी जेब में 1 पैसा ना हो और उसे 120 रुपए मिले, वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मुझे 30 रुपए चाहिए थे, और उसने मुझे, और वह मेरा दोस्त उस चर्च का सदस्य नहीं था। यह भी सुनिए आप, वह उस चर्च का सदस्य नहीं था। वो मुझे कहता कि मैं ये पैसे देने के लिए ही यहां पर आया हूं। परमेश्वर मेमने का प्रबंध करेगा। मैंने कहा परमेश्वर मेमने का प्रबंध करेगा।
पर क्या वह आप पे 5 रुपए के लिए भरोसा कर सकता है? आखिरी 5 रुपए के लिए, आखिरी इसहाक के लिए। आगे देखिए आप, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उसने उससे कुछ मत कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है। इससे मैं जब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। वह मेमना, वह पहाड़ पर वह मेढ़ा क्या कर रहा था? वह झाड़ियों में सींग फंसा के क्या कर रहा था वहां पे? आपको मालूम है, जब आप इस दिशा से चढ़ते हैं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर दूसरे आपका प्रबंध पहाड़ की दूसरी ओर से चढ़ाता है। बस साथ साथ चढ़ता है, लेट नहीं होता है। आमीन। आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि मेढ़ा पहाड़ के उस तरफ से चढ़ा। अब मुझे नहीं मालूम कि प्रभु के आत्मा ने कैसे उस मेढ़े को सुबह सुबह कहा होगा कि चल इस दिशा में और ऊपर जाके झाड़ियों में सींग फंसा ले। God can do it. हेलो, मैंने कहा परमेश्वर ऐसा कर सकता है और वह करता भी है। अगर आपको वह पूरी जानकारी पहले से दे दे तो आपको विश्वास नहीं करेंगे, पर वह चाहता है कि आप विश्वास करें। अगर उसने अब्राहम को यह बता दिया होता कि तू इसहाक को बलिदान करने के लिए ले जा, वहां बलिदान करने के लिए मैं तुझे मना कर दूंगा, वहां पे मेढ़ा भी होगा, तुझे मैं मेढ़ा मैं तो फिर ड्रामा होता, एक्टिंग। दैट्स नॉट फेथ। आमीन। और अब्राहम का बलिदान भी रियल नहीं होता, वह रियल टेस्ट नहीं है। जैसे स्कूलों में होता है, टीचर पहले बच्चे को बताते, बेटा कल सारे टेस्ट ये उत्तर आएंगे, तुम दे देना, देख लो, लिख लो। दैट्स नॉट रियल टेस्ट। यू अंडरस्टैंड दैट? आपको मालूम है टीचर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि टीचर के नंबर बनते हैं उसमें कि मेरे सब्जेक्ट में नंबर बहुत बढ़िया बच्चों के। पर परमेश्वर हमारे टीचरों की तरह फेक नहीं है, वह रियल है। आमीन। वह मेमना दूसरी तरफ से चढ़ेगा। जब आपको बुलाएगा किसी काम के लिए तो वह आपका प्रबंध भी करेगा। कहां से करेगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना जानता हूं कि वह करेगा। कैसे करना है वह मेरी और आपकी सिरदर्दी नहीं है। आपकी और मेरी सिरदर्दी उस पर भरोसा करना है और उसकी आज्ञा मानना है। आमीन। मेरी सहायता न पूर्व से न पश्चिम से बल्कि यहोवा की ओर से आती है और वहीं से आएगी उसकी सहायता। जो संदेश का मेन का बिंदु है वो यह है, जब परमेश्वर आपको किसी काम करने के लिए बुलाता है तब वह रास्ते में आपका प्रबंध करेगा, आपकी जरूरत को पूरा करेगा, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। आपको भरोसा करना होगा। आमीन। आमीन। पिता, हम यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, तेरे वचन के लिए जो जीवित है, पवित्र है प्रभु जी। और हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा प्रबंध करने वाला है। तूने कहा हजारों पहाड़ और पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। तूने कहा संसार और जो कुछ इसमें है वह मेरा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम तेरी वाचा के लोग हैं। तूने कहा सोना मेरा है, चांदी भी मेरी है, या तेरा है तो हमारा भी है प्रभु जी, क्योंकि हम तेरी संतान हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, इस प्रबंध के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। तेरे लोग जो तेरी आज्ञा मानते हैं, तेरी बातों को सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो प्रभु उनकी ज़रूरतें जो जीवन में उनकी ज़रूरतें रहेंगी, रास्ते में ज़रूरतें रहेंगी, तो उन्हें पूरा करेगा। और मेरी यह प्रार्थना है पिता कि तेरे वचन को जो हमने सुना है उस पर हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि चलने वाले हों, और 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाएं, ताकि तेरा नाम महिमा पाए। आमीन। आमीन।